ایران امریکہ جنگ کے بعد مڈل ایسٹ اور خاص طور پر خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں کا آخر مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال آج کل ہر کوئی پوچھ رہا ہے۔ یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ایران نے خطے میں مستقل امن کے لیے جو شرائط رکھی ہیں، ان میں دوسری بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد امریکی اڈے فوراً ختم کر دیے جائیں۔ ایران پہلے ہی کئی امریکی اڈوں کو اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے بری طرح تہس نہس کر چکا ہے۔ کم از کم 11 امریکی اڈوں اور 6 ڈپلومیٹک عمارتوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ کئی ریڈار تنصیبات اور ایئر بیسز پر کھڑے ٹینکر طیارے اور ایک ایوکس بھی تباہ ہو چکا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ میں خلیجی ملکوں کا جتنا نقصان ہو چکا ہے، اس کے بعد ان ممالک کے لیے بھی امریکہ پر بھروسہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ امریکی فوجی اڈے جنہیں خلیجی ملکوں کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا تھا، وہ خود ایک خطرہ بن چکے ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایرانی فورسز نے ان اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس وجہ سے خلیجی ملکوں میں بھی بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے، اس لیے ان ملکوں کے حکمران اور عوام بھی امریکہ سے سخت ناراض نظر آتے ہیں۔ تو کیا ان حالات میں ایران امریکی اڈے ہٹوانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا خلیجی ممالک اس کی اجازت دیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکی اڈے آخر کہاں کہاں واقع ہیں، ان میں کتنی فوجیں ہیں اور وہ امریکہ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ خلیجی ممالک ان اڈوں کی وجہ سے کیسے جنگ کی لپیٹ میں آئے اور انہیں کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں ان سب باتوں کے تناظر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے خلیجی ملکوں کی بدلتی ہوئی پالیسی اڈوں کے مستقبل پر نظر انداز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سپر پاور امریکہ نے مڈل ایسٹ میں 50,000 فوج تعینات کر رکھی ہے۔ اس کے اڈے عمان، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق، سعودی عرب، اردن، شام، ترکی اور اسرائیل میں موجود ہیں۔ قطر کی العدید ایئر بیس مڈل ایسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا فضائی اڈا ہے، جبکہ بحرین امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ مڈل ایسٹ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جسے سینٹ کام بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی میں خلیجی ممالک کے لوگ بظاہر پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور ان اڈوں کی موجودگی کو خطے میں امن کی ضمانت سمجھتے تھے۔ جب خطے کے دوسرے ملکوں جیسا کہ عراق، لبنان اور شام میں جنگیں جاری تھیں اور ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے، تو خلیجی ممالک میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ دنیا کے امیر ترین لوگ دبئی کے ساحلی علاقوں میں بنگلے خرید رہے تھے، قطر اور دوسرے عرب ملکوں میں سمندر کنارے پارٹی کر رہے تھے یا پھر ڈیزرٹ سفاری کے مزے لوٹتے تھے۔ جنگ زدہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے ممالک نے کئی برسوں تک خود کو امن اور خوشحالی کے جزیروں کے طور پر پیش کیا۔ اس امن کی وجہ سے ہی یہ ممالک سرمایہ کاری کے لیے انتہائی پرکشش پالیسیاں بنانے میں کامیاب رہے۔ ان ممالک کی فائدہ مند ٹیکس پالیسیوں نے اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ دبئی، ابوظہبی اور دوحہ جیسے علاقے دنیا کے ارب پتی افراد اور لگژری سیاحت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تقریبات اور کانفرنسوں کی ایک اہم منزل میں تبدیل ہو گئے۔ تاہم یہ خواب 28 فروری 2026 کو اس وقت چکنا چور ہو گیا جب تہران پر امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملے شروع ہو گئے۔ ان حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیلی شہروں کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں قائم امریکی اڈوں پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے ساتھ ہی خلیجی ممالک کی بادشاہتوں کو اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک بن بلائی جنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ان خلیجی ریاستوں نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر عرب حکمرانوں کی تمام تر کوششیں رائیگاں چلی گئیں اور پھر اچانک ایرانی میزائل اور ڈرون عالمی شہرت رکھنے والے شاپنگ مالز، فلک بوس عمارتوں اور کشتیوں سے بھری بندرگاہوں کے قریب گرنے لگے۔ ان ممالک کے شہریوں کے ساتھ ساتھ ان میں بسنے والے لاکھوں غیر ملکی اور سیاح بھی ان مناظر کو دہشت زدہ نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ نے دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک ایرانی ڈرون کا ملبہ دبئی کے برج العرب پر گرا، جبکہ پام جزیرہ کے مصنوعی جزیرے پر بھی
वाक़े फेयरमॉन्ट दी पाम पर भी बराह रास्त हमला हुआ। फिर कतर की सरकारी ऑयल कंपनी ने तस्दीक की कि रास लिफान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर होने वाले हमले में इसे वसी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अंदाजा है कि इस नुकसान की मुरम्मत में कम से कम 5 बरस का अरसा लग जाएगा। जंग की वजह से खलीजी ममालिक में हजारों परवाजें मनसूख हुई, लोगों ने होटल्स की पेशगी बुकिंग्स खत्म करवा दी और बहरीन और सऊदी अरब में फार्मूला 1 समेत मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी इवेंट्स भी मनसूख कर दिए गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आबनाए हुर्मस की बंदिश ने इन अमीर खलीजी रियासतों के तेल और गैस की दुनिया भर में बरामदात को भी मुतासिर किया। खास तौर पर कतर ने तो LNG की एक्सपोर्ट रोक दी। इस वजह से खास तौर पर भारत में गैस की शदीद कमी हो चुकी है। लोग गैस के लिए तवील कतारों में लगे हुए हैं। खलीजी रियासतों में एनर्जी एक्सपोर्ट्स के अलावा सियाहत को भी इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कौंसिल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंग की वजह से खलीज में टूरिज्म को रोजाना $60 करोड़ का नुकसान हो रहा है। 2026 में खलीजी ममालिक को सियाहत के जरिए $207 अरब की आमदनी मुतवक्के थी, लेकिन अब ये आमदनी खतरे में पड़ चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ दुबई में मुख्तसर क़याम की 80,000 से ज्यादा बुकिंग्स मनसूख हो चुकी हैं। इसके अलावा दुबई, कुवैत और अबू ज़हबी के एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट ऑपरेशन भी तातुल का शिकार हैं। इन तमाम नुकसानात का सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। जंग ने इन खलीजी रियासतों के शहरियों और हुक्मरानों में गुस्से और मायूसी का एहसास पैदा किया है। माहिरीन के मुताबिक इस गुस्से और मायूसी का खलीजी ममालिक और अमरीका के फ्यूचर रिलेशंस पर गहरा असर पड़ेगा। खलीजी ममालिक की अहम शख्सियात अमरीका और इजराइल के रवैये पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की अरबपति कारोबारी शख्सियत खलीफा अहमद उल जतौर वो पहली नुमाया शख्सियत थे जिन्होंने इस खित्ते को जंग में घसीटने पर सदर ट्रंप पर तनकीद की। उन्होंने सदर ट्रंप को लिखे गए एक खुले खत में कहा कि आपको किसने इख्तियार दिया है कि हमारे खित्ते को ईरान के साथ जंग में घसीटें, और आपने इस खतरनाक फैसले की बुनियाद किस बात पर रखी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप ने ट्रिगर दबाने से पहले इसके नुकसानात का हिसाब लगाया था। माहिरीन का कहना है कि धोखे का जो एहसास खलीजी दारुल हुकूमतों में वाज़े तौर पर महसूस किया जा सकता है वो खासा गहरा है। ताहम कुछ अरसे तक इस गुस्से का एलानिया इजहार का इम्कान कम है। इनके मुताबिक खलीजी ममालिक ने वाशिंगटन के साथ अपने ताल्लुकात में भारी सरमायाकारी की है, जिसमें इसके फौजी अड्डों की मेज़बानी, लॉजिस्टिक सहूलतों की फराहमी और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के वादे भी शामिल थे। फिर इन ममालिक ने खित्ते में इंतहाई गैर मकबूल अमरीकी पॉलिसी के साथ खुद को हम आहंग करने की अंदरूनी सियासी कीमत भी अदा की है। बदले में इन खलीजी रियासतों को कम अज़ कम ये तवक्को थी कि ऐसी जंग से पहले इनसे मशवरा किया जाएगा। जाहिर है इस जंग में आखिरकार उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए ये मशवरा जरूरी भी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग का फैसला वाशिंगटन और तल अबीब में हुआ, लेकिन नुकसानात इन मुल्कों को भुगतना पड़े। ईरानी मिसाइल उनके दारुल हुकूमतों, हवाई अड्डों और तेल की तनसीबात पर गिरे। इससे पहले 2015 में जब अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ईरान से जौहरी मुआहिदा किया था तो इन्होंने भी खलीजी ममालिक को इस मुआहिदे से दूर रखा था। हालांकि खलीजी ममालिक तो इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्हें भी इस मुआहिदे का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन अमरीका ने इनकी एक नहीं सुनी और एक तरफा फैसला कर लिया। बाद में जब सदर ट्रंप पहली बार इक़्तिदार में आए तो उन्होंने भी खलीजी ममालिक से कोई मशवरा किए बगैर ही ये मुआहिदा तोड़ दिया। अब उन्होंने ईरान जंग से पहले भी खलीजी ममालिक से मशवरे की ज़हमत गवारा हरगिज नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने इत्तेहादी नेतन्याहू के कहने पर खलीज में ये नई जंग छेड़ दी जो यहाँ के किसी मुल्क के मुफाद में हरगिज नहीं थी। खलीजी ममालिक को एक और गुस्सा ये भी है कि अमरीका इन्हें सिक्योरिटी गारंटीज भी नहीं दे रहा। न्यूज़ के मुताबिक खलीजी ममालिक नेटो के आर्टिकल 5 जैसा कोई मुआहिदा चाहते हैं ताकि इनके किसी एक रुकन पर हमला बाकी सब पर हमला तस्वुर किया जाए। खास तौर पर अमरीका इस मुआहिदे में इनके दिफा का पाबंद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमरीका इजराइल को तो हर तरह की मदद करता है, लेकिन खलीजी ममालिक के सरगर्म दिफा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ना ही वो इन मुल्कों से ऐसा कोई मुआहिदा करना चाहता है। इसलिए खलीजी मुल्क अमरीकी मौजूदगी के बावजूद खुद को गैर महफूज समझने पर मजबूर हो चुके हैं। खलीजी ममालिक में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास इस वजह से भी बढ़ा है कि 2019 में जब सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमला हुआ तो अमरीका ने कुछ नहीं किया।
फिर जब 2025 में इसराइल ने कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं पर बमबारी की तो भी अमेरिका खामोश तमाशाई बना रहा। इसके अलावा ईरान ने भी जून में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी हमले के बाद कतर में अमेरिकी बेस को टारगेट किया। अब 2026 में ताज़ा हमलों के बाद इन ममालिक के इस एहसास को तक़वियत मिली है कि वाशिंगटन इनकी मदद को नहीं आएगा। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ को ये खलीजी ममालिक तवील अरसे से महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही अपने इंतज़ामात करने शुरू कर दिए थे। ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने फौरी तौर पर पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा कर लिया था। इस मुआहिदे की वजह से पाकिस्तान इस जंग से निकलने में सऊदी अरब की भरपूर मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें इसी तनाजुर में हैं, लेकिन बाकी अरब ममालिक अभी इस मुआहिदे में शामिल नहीं हैं। इस बात का पूरा इम्कान मौजूद है कि मुस्तकबिल करीब में अब तमाम खलीजी ममालिक अपने दिफा के लिए शायद पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से मुआहिदे शुरू कर देंगे। इस तरह इनका अमरीकी मदद पर इन्हिसार बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अमरीका पर इन्हिसार कम करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अब अमरीकी अड्डों को वो ख़त्म कर सकेंगे। माहिरीन के मुताबिक अमरीका ने खलीजी ममालिक से बहुत लॉन्ग टर्म मुआहिदे कर रखे हैं। कई मुआहिदों को ख़त्म होने में अभी 20 साल का अरसा बाकी है। इस वक्त तक कानूनी तौर पर खलीजी ममालिक अमरीका से नहीं कह सकते कि वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके इनके इलाके से निकल जाएं। इस हकीकत के बावजूद खलीजी हुकाम कोशिश कर रहे हैं कि वो अब खुद को जल्द अज जल्द अमरीका की दिफाई छतरी से आज़ाद कराएंगे, इसलिए क्योंकि ये छतरी अब इनके किसी काम की नहीं रही। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया कि खलीजी रियासतों को मौजूदा जंग की रोशनी में अपने मुश्तरका रीजनल सिक्योरिटी निज़ाम का असर नौ जायजा लेने की ज़रूरत है। वैसे हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि खलीजी रियासतें इस तनाज़े में जिम्मेदारी से मुकम्मल तौर पर मुस्तस्ना नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स भी मीडिया में आ चुकी हैं जिनके मुताबिक कुछ ममालिक ने खामोशी से अमेरिका को ईरान पर हमला करने की तरगीब दी। वो इस कार्रवाई को ईरान को कमजोर करने के मौके के तौर पर देख रहे थे। ऐसी खबरों को इजरायली मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ शाया किया जाता रहा। इस तरह इजराइल ये दिखाने की कोशिश करता है कि ईरान पर हमला खलीजी ममालिक की मर्जी से हुआ है, अगरचा खलीजी ममालिक इन इजरायली दावों से इनकार करते हैं। बहरहाल इन सारी बातों से ये वाजे हो गया कि कम अज़ कम खलीजी ममालिक तो अमेरिका को फौरी तौर पर खित्ते से नहीं निकाल सकते, लेकिन क्या ईरान अमेरिका को खलीज फारिस से निकाल पाएगा? इस सवाल का जवाब इस जंग के तवील मुद्दती नताइज में छुपा है। दुनिया देख रही है कि ईरान ने इस जंग में अमेरिका को बड़ी हद तक बेबस कर दिया है। अमेरिका खलीज में अपने अड्डों पर बहुत ज्यादा तबाही का सामना कर रहा है। इसके बहुत से फौजी अपने अड्डे छोड़कर मुख्तलिफ होटल्स में पनाह लिए हुए हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसका एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अबनाए हर्मज में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सका। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड इस वक्त जंग छोड़कर क्रोएशिया जा चुका है। वहां इसे मुरम्मत के तवील अमल से गुजारा जाएगा। अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ ये है कि जहाज की लॉन्ड्री में आग लग गई थी, इसलिए इसे मुरम्मत के लिए ले जाया गया है, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आग वाली बात महज प्रोपेगेंडा है, असल कहानी कुछ और है। इस बात का पूरा इम्कान है कि जेराल्ड फोर्ड किसी हमले का निशाना बना हो। ईरान की फौजी कामयाबियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप सख्त परेशान नजर आते हैं। वो इस जंग से निकलना चाहते हैं मगर नहीं निकल पा रहे। कभी वो बयान देते हैं कि जंग कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी और अबनाए हुर्मुज़ खुलवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर वो इत्तेहादियों से शिकायत करते नजर भी आते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में वो अमेरिका की मदद आखिर क्यों नहीं कर रहे। सदर ट्रंप तो यूरोपीय ममालिक को धमकी भी दे चुके हैं कि अगर इस मामले में अमेरिका की मदद नहीं की तो यूक्रेन को असलहे की फराहमी रोक दी जाएगी, लेकिन कोई मुल्क इनकी मदद नहीं कर रहा। बरतानिया ने भी इस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका को इस जंग के लिए अपनी एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से ट्रंप सबके साथ नाराज हैं। दूसरी तरफ ईरान एक फातेह ताकत के तौर पर अमेरिका पर यह दबाव डाल रहा है कि वो शिकस्त कबूल करते हुए अपने अड्डे ख़त्म करे। इसके साथ वो अबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल का मुतालबा भी कर रहा है। अगर अमेरिका ईरानी मुतालबात तस्लीम कर लेता है तो ये इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी, लेकिन सदर ट्रंप इस शिकस्त के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। इन इलेक्शंस में सबसे अहम इशू ईरान जंग ही होगा। अगर ट्रंप इन इलेक्शंस में ईरान के खिलाफ कोई ठोस कामयाबी नहीं
नहीं दिखा सके तो रिपब्लिकन पार्टी को इबरतनाक शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। ट्रंप ये जानते हैं कि इनसे पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स को गजा जंग की वजह से इलेक्शन में शिकस्त हुई थी। पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस इस वजह से हार गई थी क्योंकि जो बाइडेन ने गजा पर इजराइल का बेवजह साथ दिया था। वो इजराइल की मोहब्बत में तमाम हदें फलांग गए थे और आखिर में नेतन्याहू ने उनकी पार्टी को छोड़कर ट्रंप का साथ दिया। अब ट्रंप को भी इलेक्शंस में अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए वो हार मानने पर तैयार नहीं है। खलीजी रियासतों में अमरीकी फौजी अड्डे तमाम ममालिक के लिए सरदर्द हैं। खित्ते में मुकम्मल अमन के लिए इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी है। इसका इन्हिसार ईरान की मुकम्मल फतह पर होगा क्योंकि ट्रंप कभी ईरान से कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जिसमें उन्हें खलीजी रियासतों से हाथ धोना पड़े। वो अपने फौजी अड्डों को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। ईरान पर अमरीकी हमले ने इसे कमज़ोर करने की बजाय एक बड़ी ताकत में तब्दील कर दिया है। अब नाए हुर्मस पर इसका मुकम्मल कंट्रोल है और इस कंट्रोल की मौजूदगी में अमेरिका के लिए खलीजी रियासतों में अपने अड्डे बरकरार रखना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगर अमेरिका अपने अड्डे बरकरार रखना चाहता है तो इसे ये जंग जीतने के लिए मजीद ताकत लगाना पड़ेगी। नाकामी की सूरत में ये तय है कि अमेरिका को अपने फौजी अड्डे खलीजी रियासतों से हटाना ही पड़ेंगे। अगर ये अनहोनी हो जाती है तो न सिर्फ ये कि अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस खत्म हो जाएगा बल्कि इसके इत्तेहादी इजराइल के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। इस तरह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आएगा और दुनिया एक नए रास्ते पर गामजन हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पर हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।